ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம டே 3 ஆஃப் அவர் குவாலியர் ட்ரிப். மணி காலையில் இப்போ 10:30 மணி. ஹோட்டல்லேருந்து 10 மணிக்கு கிளம்புனோம். ஒரு உபர் புக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்தோம். ஸோ அங்கே ஹோட்டல்லேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு 365 ருபீஸுங்க. ஆப்பில் வந்து 265 ருபீஸ் காமிச்சது. அவர் இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக மேலே கொண்டு வந்து விடுறதுக்கு 100 ருபீஸ் வாங்கினார். ஸோ டோட்டலாக 365. இங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ணோம். அதாவது இங்கே ஃபோர்ட்டில் வந்து நீங்கள் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட், அதாவது 3 வீலரில் வரீங்கன்னா அது வந்து உருவாய் கேட் அப்படிங்கிற அந்த கேட்டில் வந்து தான் இறக்கி விடுவாங்க. அங்கே இருந்து உங்களுக்கு வந்து ஓம்னி கிடைக்கும். பர் பர்சன் ஆல்மோஸ்ட் 150 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு ஓன் வெஹிக்கிள் இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் மேலே எடுத்துகிட்டு வரலாம். இங்கே வந்து முன்னாடி வந்து நல்லாவே பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்குது. ஒரு கேஃபே இருக்குது. ஸோ இப்போ இன்றைக்கி வந்து இந்த ஃபோர்ட்டை நம்ம சுற்றி பார்க்க போகிறோம். போய் நம்ம டிக்கெட் வாங்கிக்கலாம், கைடு ஏதாவது இருக்காரான்னு பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இந்த பூரா ஃபோர்ட்டையும் சுற்றி பார்க்கலாம். இங்கே நிறையா வந்து டெம்பிள்ஸ் இருக்குது ஃபோர்ட்டுக்குள்ளே, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்லேயே. அதுக்கப்புறம் வந்து குருத்வாரா இருக்குது. ஸோ எல்லாமே இன்றைக்கி பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் 4 to 5 hours நம்ம இந்த ஃபோர்ட் அண்ட் இட்ஸ் சரௌண்டிங்ஸில் தான் சுற்ற போகிறோம். ஃபோர்ட்டோட ஹிஸ்ட்ரி இங்கே எழுதியிருக்காங்க, பாருங்கள் நீங்கள். இப்போ நாம் உங்களுக்கு இந்த ஃபோர்ட்லேருந்து இருக்கிற வியூவை காமிக்கிறோம். சிட்டி வியூ, குவாலியர் சிட்டி வியூ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. கீழே நீங்கள் பார்க்குறது குஜ்ரி மஹல். அதை இப்போ ஆர்கியாலஜிக்கல் மியூசியமாக இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் இந்த சிட்டி வியூவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி ஹாலிடே லாங் வீக்கெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே வந்து கைடு கிடைக்கிறது வந்து ரொம்பவுமே கஷ்டமாக இருக்குங்க. நமக்கு வந்து ஒரு கைடு கிடச்சிட்டாருங்க. அது வந்து நமக்கு இந்த என்டையர் ஃபோர்ட்டை வந்து சுற்றி பார்க்குறதுக்கு வந்து 650 ருபீஸ் ரேட் நம்ம பேசியிருக்கோம் அவர் கூட. ये ग्वालियर फोर्ट, जितने भी फोर्ट हैं इंडिया में, उनमें ग्वालियर का फोर्ट सेकंड नंबर का मानते हैं. एरिया और हाइट के हिसाब से देखते हैं तो फर्स्ट नंबर का फोर्ट राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है. वो 12 किलोमीटर के एरिया में है, ये किला 10 किलोमीटर के एरिया में. राजा सूरज सेन पहले राजा थे. इन्होंने इस किले की शुरुआत की थी 525 में. 6th सेंचुरी में इस किले की शुरुआत हुई. लास्ट में राजा सिंधिया आए. इनके बीच में 108 राजाओं ने राज किया. इनमें अलग अलग 7 वंश के राजा हुए: कछवाहा, प्रतिहारा, सोलंकी, तोमल, लोधी, मुगल और सिंधिया. लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस महाराजा मानसी हुए हैं. ये तोमर डायनेस्टी को बिलोंग करते थे. ये ग्वालियर वाले मानसी थे जो बाबर से पहले हुए थे. एक राजा मानसी जयपुर वाले थे जो अकबर के समय थे. वो मानसी अलग है, ये अलग. इनकी 9 रानियाँ थी. 8 रानियाँ सेम कास्ट की थी, लेकिन 9वीं रानी एक गरीब किसान की. तो उसका महल सिटी में है, ग्वालियर गेट पर गुजरी महल के नाम से अलग बना. यहाँ के जो राजा मानसी थे ये बाबर से जब पहले हुए हैं, तो इन्होंने जो पैलेस बनवाया है ये बिफोर मुगल बना है. ये महल बहुत खूबसूरत है. इस महल के अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो और भारत में किसी महल के अंदर देखने को नहीं मिलती हैं. इसमें से पहला तो ये कलर का है. जितना भी आप इसके ऊपर कलर देखेंगे, पेंटिंग देखेंगे, वो उतना साबित कलर यहाँ जो देखने को मिलता है वो और दूसरी जगह में महलों में नहीं है. दूसरा खासियत ये है कि ये महल के अंदर बेसमेंट है और सारे बेसमेंट अभी तक खुले हैं. -1, -2, -3 लेवल तक अभी आप जाएंगे. ओके. तीसरी खासियत है कि एक ही महल के अंदर 5 सिस्टम है 500 साल पुराने. जैसे टेलीफोन कैसे होता था, डीजे कैसे होता था, कूलर कैसे चलता था, फिर लाइट को प्रॉपर नीचे तक कैसे रिफ्लेक्ट किया जाता था, वो सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलता है. तो 8 रानियाँ जो इस महल में रहती थी उनकी पूजा करने के लिए शिव जी का मंदिर बनवाया था. इसमें देखते हैं तो 82 पिलर आप देखने को मिलते हैं. ये सारे 82 पिलर हैं. इनकी सपोर्ट लेकर के हॉल बनाया था जहांगीर मानसी जी ने. तो शिव जी का मंदिर था, लेकिन जब जहांगीर का टाइम आया तो जहांगीर ने अपने टाइम पर इस बिल्डिंग को मंदिर से हटा करके इसको जेल में परिवर्तित कर दी गई. जब जेल बनाया था तो इसमें चारों तरफ से 30 खंबे बंद कर दिए गए थे और 52 यानी 52 खंबे बीच में थे. एक एक राजा को एक एक पिलर से बांध के रखा था. इसलिए इसको पंजाबी भाषा में इसको बवंजा थम कहा जाता है. बवंजे माने 52, थम माने पिलर. चित्रकारियाँ की हुई हैं. ये कुछ हिंदू देवी देवताओं के वाहनों को बनाया है. टॉप पर देखते हैं तो एलिफेंट बना हुआ है. विंडो के राइट में एलिफेंट इंद्रवान का व्हीकल्स है. लेकिन राइट में आप देखते हैं तो 2 टाइगर्स बने हुए हैं जो दुर्गा के व्हीकल्स हैं. सबसे सेकंड लाइन में चलते हुए देखते हैं तो येलो कलर में डक्स बनी हुई हैं और डक्स जो है सरस्वती जी का व्हीकल्स है. सबसे नीचे लाइन में देखते हैं तो मगर है और मगर मुंह से फुब्बारा सा निकलता हुआ दिखता है जस्ट नीचे. मगर गंगा जी का वाहन है.
इनको देखने से पता चल रहा है किसी राजपूत राजा ने इस महल को बनवाया है। महल के ऊपर जितनी ये गुम्बद बनी हैं, जितने भी ये डोम्स बने हुए हैं, इन सारे डोम्सों के ऊपर गोल्ड प्लेट से ढका हुआ था। जब बाबर ने ग्वालियर फतेह किया, ग्वालियर जीता और ग्वालियर में आकर के खूबसूरत महल को देखा, तो इतना खूबसूरत महल और पूरे भारत में कहीं नहीं देखा गया था बाबर के द्वारा। तो बाबर के ये मन में भा गया और जब उसने बाबरनामा बुक लिखा तो बाबरनामा बुक में इसका जिक्र किया है, इसका वर्णन किया है। इन्होंने कहा है कि लेडीज़ के शरीर के ऊपर गले में जो सोने का हार शोभा देता है, इसी तरीके से भारत के महलों की श्रृंखलाओं में महाराजा मान सिंह का महल एक सोने का हार है, नेकलेस का है, कितना सुंदर सजा हुआ है। हम अभी टिकट ले लिए हैं। प्रति व्यक्ति के लिए 30 रुपये है टिकट। ये टिकट के वजह से आप मानसिंह पैलेस, तेलिका मंदिर और सास बहू मंदिर, ये तीनों में वो टिकट आप उपयोग कर सकते हैं। महल बहुत सारे देखे हैं हिंदुस्तान में आप लोगों ने, लेकिन ये महल कुछ जगह जगह से डिफरेंट है कि इसके अंदर बेसमेंट भी है। सारे बेसमेंट अभी देखने जाएंगे, लेकिन जिस फर्स्ट रूम में भी आप हैं, ये संगीत रूम था। राजपूत राजाओं में पर्दा चलता था, रानी हमेशा पर्दा रखती थी। तो ऊपर इसमें 8 जालियां हैं, हर जाली के पीछे ब्लैक कलर के पर्दे डाल दिए जाते थे और पर्दे के पीछे बैठा करती थी महारानियाँ। तो जब नीचे बैठे हुए संगीतकार ये संगीत प्ले करते थे तो रानियाँ देख सकती थी, सुन सकती थी, लेकिन नीचे बैठे हुए संगीतकार लोग इन रानियों को नहीं देख सकते। जालियों में देखेंगे तो जेंट्स और लेडीज को डांस करते हुए सीन नजर आ रहे हैं आपको। डांडिया डांस करते हुए सीन है कि गुजरात में होता है, जिसे गुजराती डांस करता है। प्राइवेट मीटिंग हॉल जिसे दीवानी खास कहा जाता है, तो इसमें मृगनयनी को ही बुलाया जाता था, लास्ट वाली रानी को। यहाँ पर आप देखते हैं तो ऊपर 9 झरोखे हैं, 9 जालियाँ हैं। रानियाँ इन जालियों के अंदर बैठ कर के भाग लेती थी मीटिंग में, लेकिन राजा मान सिंह मेन राजा थे, इनके बैठने के लिए ऊपर होता, इसके ऊपर एक छतरी थी, वो टूट गई है। बाकी मंत्रीगण नीचे बैठते, जब ये शर्तें रखते थे भगवान के सामने रखते थे। तो ये मंदिर हुआ करता है और इसी मंदिर के नाम का नाम है मान मंदिर पैलेस। जब ये मंदिर बनाया तो ऊपर देखिए एलिफेंट्स बने हुए हैं जो गणेश के फेस के रूप में है। कमल ब्रह्मा जी का संकेत कर रहा है, रुद्राक्ष शिव जी पहन के शिव जी का सिंबल है, चक्र विष्णु जी का। चारों तरफ से परिक्रमा करने के लिए गैलरी है जहाँ से रानियाँ भगवान की परिक्रमा लगाती हैं। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होता था जहाँ भगवान विष्णु जी की मूर्ति विराजमान होती थी। इनमें रंगीन रंगीन कांच और डायमंड्स लगे रहते थे। पहले के समय जब लाइट नहीं थी तो स्टैंडों पर ऑल लैम्प रखते थे और ऑल लैम्पों की रोशनियाँ जब ये ग्लास और डायमंड से पड़ती थी तो ये लाइट की चमक, लाइट का रिफ्लेक्शन करती थी। जब लाइट को बंद करनी होती थी तो ऊपर ये हुक से इनके द्वारा पर्दे डाल दिए जाते थे। लेकिन जब मुगल टाइम में इसको जेल बनाया तो ये मंदिर को हटा दिया था। यहाँ से मूर्ति हटा दी, इसमें जो ग्लास वगैरह लगे हुए थे, डायमंड्स लगे हुए थे, सारे के सारे निकाल दिए गए। तो ये पूरा महल जो है बाद में जेल के रूप में यूज़ किया। यहाँ पर देखेंगे तो ये सर्किल बना हुआ जो नज़र आ रहा है, ये महाराजा मान सिंह के समय का राज परिवार का सिंबल होता था। ये हमेशा रहता था इनके फ्लैग के ऊपर, लेकिन इनके 2 कोडवर्ड सिंबल होते थे जो टाइम के हिसाब से चेंज किए जाते थे। जैसे इस राइट में आप देखते हैं तो यहाँ डांस करते हुए मोर बनी हुई है। ये डांस करते हुए मोर का चित्र जब बना करके दिखाया जाता था झंडे पर, जब कोई फेस्टिवल, कोई फंक्शन होता। लेकिन यही राजा के अगर विरुद्ध है उस समय, टाइम कुछ विपरीत है। यहाँ पर देखेंगे तो लेग है उसका है, बॉडी ड्रैगन की है, हेड एलिफेंट का है जो एलिफेंट को कैप्चर कर रहा है। ये सिंबल फाइटिंग के लिए दिखाया जाता है, लड़ाई का, खुशहाली का और राज परिवार का। जब जैसा माहौल होता था उस तरीके से झंडे के ऊपर चित्र बना करके दिखाते थे। क्यों कि आज के टाइम पर तो टीवी, रेडियो, पेपर के द्वारा न्यूज़ मिलती है, पहले न्यूज़ का साधन नहीं होता था। तो एक घुड़सवार घोड़े पर बैठ करके और फ्लैग को लेकर के शहर में राउंड लगा देता था। शहर की पब्लिक जैसे फ्लैग को देखती थी उससे पता चल जाता था क्या पोजीशन है। राजा मान सिंह के समय का लाइब्रेरी रूम क्या जो रूम है, इस रूम के अंदर महाभारत, गीता, रामायण जैसी बुक्स रखते थे। राजा यहाँ पर बैठ कर के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे। तो पहले जब लाइट नहीं होती थी तो सूरज की रोशनी को कांच के माध्यम से अंदर लाया जाता था। कैसे लाते थे? जैसे एक कांच की प्लेट बाहर लगी हुई थी, यहाँ पर सेकंड 90 एंगल पर ग्लास प्लेट लगा हुआ है। बाहर वाले ग्लास प्लेट का रिफ्लेक्शन जब 90 वाले ग्लास प्लेट पर पड़ता था तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन उस साइड में जाता था और सेम उस साइड में लगे हुए ग्लास का रिफ्लेक्शन इधर के लिए रिफ्लेक्शन करता था। ये लाइट को बाहर से उस कांच के माध्यम से लाया। ये लाइट और हवा आने के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए है।
45 एंगल पर कांच लगा हुआ था, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ गिरता था। फिर यहाँ पर सेकंड 45 एंगल पर कांच लगा हुआ था, उसका रिफ्लेक्शन -3 फ्लोर गिरे जाता। ये पेरिस्कोप टाइप का यूज़ किया गया 500 साल पहले। सब यानी -1 फ्लोर में आ गए आप बेसमेंट में। तो जिस बेसमेंट में अभी आप हैं, इस राजा मानसी के समय रानियों का झूला घर था। क्या है? झूला। हाँ। इसमें राउंडेड में 8 गेट हैं, हर गेट पर हुक्स लगे हुए हैं आयरन के। हाँ। इन सभी पिलरों के ऊपर गोल्ड प्लेट चढ़ी हुई थी और रेशम की डोरों के साथ झूले डलते थे, रानियां झूला झूलती थी। लेकिन जब 17वीं सेंचुरी में इसको जेल बनाया, यहाँ औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दे के मारा था इस रूम में, उसके नाम से इसको फांसी घर कहा जाता है। फांसी यहाँ से दी थी। सामने प्लास्टर भरा हुआ है चूना, एक इस साइड में है प्लास्टर जिसमें एक रॉड डाला था, एक पाइप लगाया गया था और इसके द्वारा यहाँ पर फांसी दे के मार दिया गया। ये टेलीफोन जो है पूरी दुनिया का टेलीफोन सबसे पुराना माना गया है, क्योंकि टेलीफोन की स्टार्टिंग जो की गई वो ग्राहम बेल के द्वारा हुई और ग्राहम बेल के समय को 200 साल हुआ है लगभग, लेकिन मानसी जी का टाइम 500 साल पुराना था। तो ये मानसी जी का टेलीफोन कैसा था उस ज़माने का, वो इस तरीके सा था कि जैसे राजा की 8 रानी इस महल में रहती थी, लेकिन राजा की 9वीं रानी का महल सिटी में है, ग्वालियर गेट पर गोजरी महल के नाम से। उस महल से इस महल को इन्होंने सुरंग के रास्ते के साथ जोड़ा गया और सुरंग के रास्ते के साथ साथ इन्होंने 2 पाइप लाइन से जोड़ा। 3 इंची पाइप थे जिन्होंने जो है पाइप को जो है चूना की सपोर्ट करते हुए डाले। तो यहाँ से एक पाइप से जब ये बोलते थे तो उनके महल के अंदर तक आवाज़ पहुँचती थी और उस महल से जब बोलते थे तो आवाज़ इस महल में आती थी। तो इस तरीके से राजा मानसिंह का मृगनयनी का टेलीफोन 500 साल पुराना था। छोटे छोटे हैं, जबकि राजा रानियाँ हाइट और हल्के होते थे। ये छोटे गेट होने का कारण था सेफ्टी के लिए। जब कभी कोई अटैक होगा, कोई अदर पर्सन आएगा तो एक एक होकर आएगा तो गर्दन झुका के आएगा और जैसे गर्दन झुका के एंट्री करेगा तो उसके सिर को काट दिया जाएगा। तो मौके पर सेफ्टी मिल सके इसलिए गेट छोटे बना दिए। ये है तो -3 तक है, लेकिन ये माइनस कितना तक? 3 तक है। तो इसमें ये रूम जिसमें अभी आप हैं, ये राजा मानसिंह के समय का राजा रानी का झूला घर था। अभी आपने वो देखा था सिर्फ रानियों वाला। यहाँ पर सेंटर में 4 हुक्स हैं, इनके द्वारा बीच में एक बड़ा झूला करता था जहाँ 2 लोग एक समय एक साथ बैठ करके झूला झूल सकते थे, राजा रानी। जब कोई लड़ाई झगड़ा होती थी तो रानी यहाँ बैठ करके राजा का वेट करती थी, तो खिड़की के बाहर झंडा लगा रहता था, वो झंडा यहाँ से दिखता था। जब राजा मानसिंह लड़ाई में हार गए तो ये झंडे को नीचे डाल दिया। झंडे के गिरते ही क्लियर हो गया कि राजा खत्म हो गए हैं। जब राजा खत्म हो जाते तो रानियाँ जिंदा नहीं रहती थी, तो उनकी 8 रानियों ने मिलकर जौहर कर लिया। तो जहाँ जौहर किया था वो -3 लेवल में अभी आप देखने जा रहे हैं। इन सेंचुरी में 15वीं शताब्दी में मानसी जी का प्लानिंग उस समय कितना बेहतरीन था कि जिससे ऊपर से सनलाइट को -3 फ्लोर तक रिफ्लेक्ट किया जाता था। तो जैसे उस साइड में सर्किल है उनमें ग्लासेस लगे हुए थे, उनका रिफ्लेक्शन इधर आता था। इधर वाले सर्कलों में ग्लासेस लगे हुए थे, इनका रिफ्लेक्शन उधर वाले जीने पे जाता था। ये वाला -3 लेवल है। इसमें अराउंड में जैसे 8 गेट यहाँ पर भी है, 8 पिलर यहाँ पर भी है, लेकिन ये पिलरों के जस्ट लगा हुआ 12/8 यानी 12/8 फुट का एक टैंक था ये। और इसमें केसर से मिले पानी में रानी स्नान करती थी। रानियों का नहाने का वार्ड टब था। जब राजा की लड़ाई हुई तो ये डाउट हो गया था कि राजा का बचना मुश्किल है, तो ये पानी को बाहर निकाल के चंदन की लकड़ियाँ इकट्ठी करती थी। मानसी जी की जब डेथ हुई, फ्लैग को झुकाया, उससे क्लियर हो गया कि राजा खत्म हो गए। तो उनकी 8 रानियों ने मिलकर के यहाँ पर जलती हुआ में जौहर कर दिया। लेकिन जब मुगल टाइम आया, इसको जेल बनाया, तब इसको छोटा कर दिया। अभी लोग आते थे, इसमें लोग गिर जाते थे, इसलिए सेफ्टी के लिए जाल डालते हैं। अभी तो उधर भी डेप्थ भी खत्म कर रहा ये 3/4 फुट का है। हाँ। ये 12/8 पूरा। ये पैलेस का 2nd नंबर का ओपन कोर्टयार्ड है और इस ओपन कोर्टयार्ड को 3 नामों से जाना जाता है। ग्लास पैलेस, कलर पैलेस एंड द डांसिंग हॉल। 500 साल पहले यहाँ विदाउट लाइट के डीजे डिस्को जैसे सीन देखने को मिलते थे। उस ज़माने में जब लाइट नहीं थी तो वो डीजे डिस्को होता कैसे था, क्या सिस्टम रहा होगा, तो देखेंगे जितनी फ्रेमें हैं इनमें शीशे लगे हुए थे अलग अलग रंग के, और इसी तरीके से उस साइड में ये स्टैंड है, इन पर और लैंप रखी जाती थी। लाइन में रखी हुई लैंपों की रोशनियाँ जब उधर वाली ग्लास में पड़ती थी तो लाइट का रिफ्लेक्शन इधर के लिए आता था, इधर से लाइट का रिफ्लेक्शन उधर जाता था। बीच में जो जेंट्स ऑलरेडी डांस करने वाली होती थी उनकी ड्रेसों पर भी रंगीन रंगीन शीशे होते थे, तो मल्टी कलर लाइट रिफ्लेक्ट होती। ऐसा देखने मिलता था, ऐसा कुछ मुगल आजम फिल्म में देखने मिलता है। 4 रानियाँ उन जालों के पीछे अंदर बैठती थी पर्दे में, 4 रानियाँ इस साइड, राजा मान सिंह और 2 गेस्ट ऊपर वाली बालकनी में बैठते थे।
इनका जो चीफ गेस्ट होता था उसे राजा से ऊंचा बैठाया जाता था। डांसर लड़ी डांस करने से पहले इनको मेकअप करना है, ड्रेस चेंज करना है, तो एक ग्रीन रूम होता है। राजा का जो मेन बेडरूम था, देखिए जहाँ बिना लाइट के कूलर चलते, तो यहाँ पर जो दिखेंगे ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत सजाया गया था। ये पूरा डेकोरेटेड सजा हुआ था। 2 कूलर चलते थे यहाँ बिना लाइट। तो वो कूलर चलने का सिस्टम क्या था वो देखिए। चलने का जो प्रोसीजर था वो ये था, जैसे हॉल है, ये हॉल में एक रॉड लगा हुआ था बांस का पाइप, उसके अंदर 2 फैन प्लेट लगी हुई थी। एक फैन प्लेट दीवार के बाहर, एक फैन प्लेट दीवार के अंदर। ज़मीन के लेवल से 350 फुट की हाइट होने के कारण हवा की स्पीड से बाहर वाली फैन प्लेट को दबाव से घुमाती थी तो अंदर वाली घूमेगी। हवा डायरेक्टली आएगी तो गर्म आएगी। यहाँ पर खस की जाली लगी हुई थी, बीच में टैंक का पानी भरा रहता था, केसर से भरा होता था। और उसे पीते हुए हवा पानी से टच होकर के खुशबू को लेकर ये रानियों का ड्रेसिंग। 9वीं रानी का महल जो सिटी में जोड़ा गया था वो उस रास्ता यहाँ से होता था। ये रास्ते मुगल टाइम में जब एक किले को जेल के रूप में यूज़ किया गया था, उस समय ये रास्ते बंद कर दिए गए थे, तो रास्ता यहाँ से था। एक स्टोन की प्लेट लगी हुई थी, सिंगल ज़रूरत पड़ने पर प्लेट को हटा करके जा सकते थे। ऐसा लगता था कि इसमें कोई यहाँ से रास्ता नहीं है, लेकिन रास्ता दिखाया ये जाता था, जबकि यहाँ से कोई रास्ता होता नहीं था, सिर्फ एक दुश्मन को कन्फ्यूज करने के लिए सस्पेंसेस रास्ता। இந்த எபிசோடை இதோட நம்ம எண்ட் பண்ணிக்கலாங்க. அடுத்த எபிசோடில் நம்ம மீதி இந்த குவாலியர் ஃபோர்ட்டில் இருக்கிற பேலசஸ்ஸு, டெம்பிள்ஸு எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாங்க. டேக் கேர், பை பை, see you again.